بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا. معزز سامعین اکرام، اب تو دیوبندیوں کا یہ حال ہو گیا ہے، اپنے آپ کو بریلوی بتانے لگا ہے. آپ حضرات اس آڈیو میں سنیں گے ایک دیوبندی کا کال آیا ہمارے نور حسن رضوی صاحب کے پاس. جب عادت کے مطابق نور حسن رضوی صاحب نے اس سے پوچھا تمہارا مسلک کیا ہے، تو اس نے بتایا میں مسلمان ہوں. بات ہوتی رہی، پھر اسی بیچ میں اس نے کہا میرے سسرال والے بریلوی ہیں، وہاں سارے بریلوی ہی ہے. پھر آگے بات ہوئی، پھر اس نے کہا میں بریلوی ہوں. اب آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں گے تو اس کی دیوبندی کی منافقت آپ حضرات اس آڈیو میں سنیں گے اور جانیں گے. یہ آڈیو پیش کرنے کا مقصد ہے آپ حضرات کو اس کی منافقت کو پتہ چل جائے. تو آپ حضرات اس آڈیو کو غور سے سنیں اور تمام لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ہیلو، السلام علیکم. جی کون بھائی؟ عمران بول رہا ہوں. عمران کہاں سے؟ یہ آپ نور حسن جی بول رہے ہیں نا؟ ہاں میں نور حسن بول رہا ہوں. اچھا، یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں یوٹیوب پہ، تو یہ بات بھی ڈالیں گے یوٹیوب پہ آپ؟ کیا ہوا، کوئی بات ہو گئی کیا؟ نہیں کہاں سے ہیں آپ؟ بہریج سے بول رہے ہیں. بہریج سے. بہرائچ شریف سے. آپ کا مسلک؟ مسلک ہمارا مسلمان ہے. تو یہ بتائیے آپ کہ باتیں یہ یوٹیوب پہ مطلب ڈالتے ہیں، ہر باتیں ڈالتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کی ضرور ڈالوں گا، کسی کی ڈالوں نہ ڈالوں مگر آپ کی ضرور ڈالوں گا. بولیے. اچھا، اگر آپ کا یہی شوق ہے کہ میری گفتگو کو ڈالا جائے. نہیں ہے، میں ایسے ہی مطلب باتیں آپ کی سنی تو میں کہا باتیں کرتے ہیں. ذرا میں نہ زیادہ پڑھا لکھا ہوں، نہ کچھ بھی ہے، نہ زیادہ جانکاری. بات کرنے میں مزہ تب آئے گا جب آپ اپنے کسی عالم کو لائن پہ لے کے آؤ گے. نہیں یہ بات نہیں، میں آپ سے کیول جانکاری چاہتا ہوں بس، اور کچھ نہیں. آپ مطلب جانکاری کس چیز کی دے سکتے ہو؟ جانکاری عالموں سے لو، اپنے محلے کے، اپنے جگہ کے. ٹھیک ہے، میں کھلے عام دیوبندیوں وہابیوں کا رد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. اور میں خود دیوبندیوں سے نکلا ہوں، اس لیے. اچھا. دیوبندی وہابی دشمنان رسول ہیں، غدار رسول ہیں. جی. اگر آپ کا دشمنان رسولوں سے کوئی دوستی ووستی ہو، رشتے داری ہو تو بہت اچھی بات ہے، کرو ان سے دوستی. سنیے، جو رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یار بڑی اچھی بات کہہ دی. ہر چیز، مگر ایک بات بتاؤں بھائی جان، ہم ہر چیز مانتے ہیں. رسول کو علم غیب ہے یہ ہم مانتے ہیں. آپ نے جو ایک بات کہی ہے جی کہ میں مسلمان ہوں، جی، تو مسلمانوں کی کئی جماعتیں ہیں. یہی تو میں آپ سے جانکاری لینا چاہتا ہوں، اسی لیے آپ کے پاس فون کیا. جی جی جناب، مسلمانوں کی کئی جماعتیں ہیں. نہیں میں نے اس لیے کہا کہ میں مسلمان ہوں کیونکہ مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ دیوبندی اور وہابی مسلمان مانتے ہو آپ کہ نہیں مانتے. دیوبندی مسلمان ہیں ہی نہیں. مسلمان نہیں ہو. اب اس میں کون کون، میں ان کا نام بتا دوں آپ کو، آپ کے شک دور کرنے کے لیے. جی جی بتائیے. تھانوی دیوبندی، جی. ننوتوی دیوبندی، جی. گنگوہی دیوبندی. جی. ٹھیک ہے. جی. یہ 4 دیوبندیوں کے 4 اکابر جو ہیں جی یہ دین سے خارج ہیں. اچھا. اسلام سے خارج ہیں. مطلب اللہ یہ دشمنان، میں بتاؤں گا نا، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ؟ جی بتائیے. آپ نے جاننے کے لیے کال کیا ہے نا؟ جی جی بالکل. ہاں تو سنیں. جی، اگر آپ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو اور حضور کے امتی ہو، دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. باقی اس کے بعد ہمارے ماں باپ بھی اس کے بعد. جی جی چلیے، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے. اللہ کے بعد دوسرا نمبر.
तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये लोग दुश्मन हैं, क्योंकि इन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीनें की हैं। जी जी। हाँ, मतलब ये मुसलमान नहीं है। जी हाँ, वो चारों के चारों ईमान से खारिज हैं, मुसलमान नहीं हैं, और जो इनके कुफ्र को जानकर इनको मुसलमान मानेगा वो भी मुसलमान नहीं है। अच्छा, ठीक है। मतलब ये कलमा पढ़ने से, ये लोग कलमा पढ़ते हैं ये लोग, हाँ, तो कलमा को कोई मतलब नहीं है। हर कलमा पढ़ने वाला, हर नमाज पढ़ने वाला, हर ज़कात देने वाला, हर हज करने वाला मुसलमान नहीं। अच्छा, जी हाँ, हर जंग लड़ने वाला मुसलमान नहीं, मुसलमानों के साथ जंग लड़ने, क्योंकि बहुत सारे मुनाफिकीन ने जंग लड़ी थी ना हुजूर के साथ, सहाबा के साथ। जी जी, इतनी थोड़ी बहुत तो जानकारी है हमें। हाँ, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी कुछ लोग नमाज पढ़ते थे ना? जी बेशक। क्या मुसलमान थे? कुछ लोग मुनाफिक थे, उसमें कुछ यजीदी थी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो मुझे बताना था वो आप ही बता रहे हैं। कुछ यजीदी थे और कुछ क्या कहता अबू जहली थे। जी जी, माशाल्लाह। यजीद का नाम नहीं लाइए, यजीद उस वक्त उसका नाम और निशान भी नहीं था। अरे हाँ, वो तो बात है, मगर यजीद तो है तो मतलब यजीदी आज के लोगों को कहेंगे जी, क्योंकि यजीद बाद में। बात मुझे ये बताइए आप। हाँ, सबसे जरूरी बात ये पूछने, मतलब मेरा, देखिए आप बात को ना घुमाइए, जो आपने जानने के लिए कॉल किया है तो मैं समझा दूं आपको। इधर उधर भागेंगे तो फिर बात करने में मजा नहीं आएगा। आप मतलब आपसे मैं ख्याल करके मैं जीत ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं है। आप तो इतने प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने प्रोग्राम नहीं किए हैं। मतलब अरे वही जो आप यूट्यूब पे डालते हो, मैं 4-5 दिन से लगातार सुन रहा हूँ। अच्छा, आपको गुस्सा आ गया होगा मेरी बात को सुन के? नहीं, गुस्से की बात नहीं है। गुस्से इसमें आप अच्छी बात बताते हो, मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिखाते हो, इसमें गुस्से की क्या बात है? अच्छा अच्छा। आप जिनके अगर खिलाफ बताते कुछ तब गुस्सा आता। हाँ, मैं तो भाई अपने नबी का गुलाम हूँ, अपने नबी का उम्मती हूँ, तो मैं नबी की वफादारी करूंगा। मैं नबी का हूँ तो नबी का गीत गाऊंगा यार। मगर एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी, कि जैसे हमारे ससुराल है हमारा। अच्छा। वहाँ टोटल बरेलवी हैं। अच्छा। टोटल बरेलवी ही हैं। अच्छा। तो उनका यार मानना, उनके अलग हिसाब से उनका मानना है। क्या वो मानते? सबसे पहले वहाँ दो हैं, मतलब बाबा वारिस पाक को ज्यादा, मतलब मुरीद वारिस पाक के। और मुरीद क्या है, मेरे हिसाब से वो अपना धंधा ही चला रहे हैं। अच्छा। हाँ, आप बात सुनिएगा, मेरी पहली पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद किसी तरफ मतलब आप तवज्जो कीजिएगा। जी जी जी, फरमाएं। धंधा ही चला रहे हैं। अच्छा, ख्याल से अच्छा, मुरीद हैं, बरेलवी हैं। अच्छा, मगर वो धंधा ही चला रहे हैं मेरे ख्याल से। अच्छा। एक तो है बाबा, इसमें वो मतलब जवानी भर किया, अय्यास फुल अय्यासी किया उसने। सुन रहे आप? सुन रहा हूँ। उसके बाद जब उसकी तकरीबन 40-40 साल की उम्र हो गई जी, तो वारिस पाक का वो मतलब जो होता है कपड़ा होता है एहराम, वो पहन लिया और मतलब कमाने धमाने के चक्कर में हाँ, वो फुल मतलब वारिसी हो गया। अच्छा। और दूसरे हैं तो वो भी यही काम अपना धंधा चलवा रहे हैं। अच्छा। और पैसे के लिए ये सब कुछ, मतलब ना नमाज से मतलब है, ना रोजे से मतलब है, ना किसी चीज से मतलब उनको जी, हर चीज। और वहाँ यार इतनी ज्यादा ही मतलब कि आप वहाँ चले जाओगे, आप चले जाओगे ना, आप बहुत बड़े पक्के हो, ये मैं जानता हूँ। आप चले जाओगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। वहाँ एक मजार उन्होंने बनवाई है, सुन रहे हो आप? हाँ, सुन रहा हूँ हजरत। वहाँ पे एक मजार उन्होंने बनवाई है, तो मजार के अंदर उन्होंने कुरान पाक को दफन कर दिया है। ये सही है या गलत है? और वो कहते हैं हम बरेलवी हैं। अरे हेलो, हाँ, तो ये बताइए, मतलब मजार के अंदर उन्होंने कुरान पाक को दफन कर दिया है। कुरान पाक को दफन कर दिया है? जी जी जी। क्यों? अब उनका मानना है किसी मतलब एक थे, पता नहीं वो क्या थे, ये मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा। तो वहाँ का वो मतलब इंतकाल कर गए वो। अच्छा। तो वहाँ के एक ईंट लाके वहाँ से तो उसमें रखा और फिर कुरान पाक को उसमें दफन कर दिया, मुसल्ला भी रख दिया, कुरान पाक दफन कर दिया। फिर उसके ऊपर जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं ना, जैसे हिंदू लोग पूजा करते हैं ना, उसी हिसाब से वो पूजा करते हैं। अच्छा, आप मेरी बात करा सकते हो उन लोगों से? अब मैं तो दूसरी जगह हूँ।
अच्छा अच्छा, वहाँ का नंबर वंबर तो होगा ना आपके पास? नहीं, मैं नंबर से तो बात हो सकती है ना, आप कहीं भी हो दुनिया भर में। आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए। मैं अगर कभी वहां गया, नहीं तो वैसे भी बात करा सकते हैं ना, मैं भी फिर पूछूंगा। और ऐसे लोगों से हमारा कोई नाता नहीं है, ठीक है? आप हर बाबे को बरेलवी ना समझ बैठो। नहीं, वो कहते हैं ना। अरे सुनो ना जी, हर बाबे को बरेलवी ना समझ बैठो, और मैं ठीक है? और हमारे जो अहले सुन्नत के हजरात होते हैं, जी, ठीक है, वो ऐसे ढोंगी बाबे नहीं होते। ऐसे हमारे जो बाबा हैं, सुने हमारे जो बाबा हैं वो ऐसे होते हैं जैसे खादिम। अरे ओफो, आप नहीं, आपकी बात को इतनी तसल्ली से सुना, प्यार से सुना, मैं सारी बात आपकी समझ गया। जी जी, समझे? जी बताइए। अब मेरी भी थोड़ी सी बात सुन लो। जी बताइए, बिल्कुल आप बताइए। हम किसी ऐसे बाबे पीर को पीर नहीं मानते जी, जिसके कारनामे अहले सुन्नत के खिलाफ हों। हम उसे पीर नहीं पैर मानते हैं। जी बिल्कुल, बेशक, ठीक है? बिल्कुल। और हर बाबे को तुम बरेलवी ना जानो। नहीं, वो लोग ये कह रहे हैं ना, बता रहे कि हम सुनिए ना, सुने ना जी, वो अपना नाम बरेलवी कहे या कुछ और कहे, जी, ठीक है? जी, बरेलवी हम अपने आप को इसलिए कहते हैं कि हम आला हजरत को मानते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है? जी, और आला हजरत को हम इसलिए मानते हैं कि ऐसे ही पीर मुजाबिर और सटोरियों और गंजेड़ियों की मुखालफत आला हजरत ने की है। जी, समझे? जी, आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मजार पे जाने का तरीका भी बताया जी, कि जब किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो मजार से 4 कदम हटकर रहो, जी, ताकि कहीं तुमसे कोई ऐसी चीज। नहीं, औरतों को मना है कि? औरतों को तो मना है मेरे ख्याल से। अच्छा, आपने अपनी जमात का नाम नहीं बताया, पहले आप अपनी जमात का नाम बताएं, उसके बाद मजा आएगा बात करने में। मजा ये घुमाए नहीं बिल्कुल भी। और लावारिस, अगर लावारिस है तो मैं लावारिसों से बात नहीं करता हूँ। जमात का नाम बता दें आप मुझे। नहीं, ये गंदी बात मत करना। देखिए सुने ना, नहीं, गंदी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, जिसका कोई नहीं होता, लावारिस का मतलब मेरा बाप नहीं क्या? नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसको लावारिस कहा जाता है। आपकी अगर जमात है तो बेहतर है, बढ़िया है, मजा आएगा बात करने में। मैं फिर सबूत दूंगा उस जमात के। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरे कुछ उसूल हैं बात करने के। जी, मैं उस शख्स से कभी भी बात नहीं करता जो अपनी पहचान नहीं बताता या जिसकी जमात नहीं होती, जो लावारिस होता है, जो बगैर जमात का होता है। बरेलवी हूँ मैं। ये ढोंग रचाना बंद करो जनाब। ढोंग की बात नहीं है, ढोंग रचाना बंद करो। मैं बरेलवी हूँ। ढोंग रचाना बंद करो। मगर अरे आप कैसे, आपको सुन, मैं बरेलवी हूँ। मेरे आला हजरत ने मना किया है, औरतों का जाना मजार पे मना है। और औरत जब से जाने का इरादा करती है खामा खाम है और जाकर वापस नहीं आ जाती, अल्लाह उसके फरिश्तों की लानत होती है। जब बगैर अरे सुने ना जनाब जी, अरे आला हजरत को पढ़ोगे तो खुद बरेलवी बन जाओगे, तुम खुद सुन्नी हंसी बरेलवी बन जाओगे। तारिक, अगर मजार पे जाना दुरुस्त नहीं होता तो तारिक जमील क्यों जाता है, महमूद मदनी क्यों जाता है, असद मदनी क्यों जाता है, ये देवबंदी क्यों जाते हैं मजार पे? अगर मजार पे जाना सही नहीं होता, दुरुस्त। ये देखिए भाईजान, मैं ऐसे लोगों से बात बिल्कुल नहीं करता हूं जो अहले सुन्नत को बदनाम करते हैं, या जिन बाबे को पकड़ के तुम अहले सुन्नत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अरे पहले आप पूरी मेरी बात सुनिए। नहीं, आप सुन ली मैंने आपकी बात, मैंने आपकी बातें हैं, अभी बहुत सारी बातें हैं। अरे बहुत सारी गठरी बंद करके लेकर आए हो क्या? कहो तो मैं करूं, कहो तो ना करूं। मुंह बंद करके चले जाइए, पहले अपनी जमात का नाम बताइए। बरेलवी हूं मैं, बता नहीं रहा हूं मैं। ये हरकतें करना बंद करो, ठीक है जनाब? क्यों? ये हरकतें छोड़ दो। क्यों, बताइए आप। ये जो बाबे ना, बाबे, इन बाबों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे बाबों का जितने ये बाबे फिर रहे हैं, हमारी जमात इनका बाइकआउट करती है। और ये जितने पीर पजाड़, ये जितने भी बद मजहब नहीं तो हमारे ऊपर एतराज करते हैं ना, ऐसे ही सुनिए ना, ऐसे ही बाबे की वजह से एतराज करते हैं। नहीं, आप गुस्सा हो, सुने पहले मेरी बात, मैं सही कर, सुनिए जी। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है ऐसे बाबे से। और ऐसे बाबे को देख कर जो बदमजहब, बदअकीदे, वहाबी, देवबंदी, नजदी जितने भी हैं जो हमारे ऊपर तंज करते हैं, उनका तंज करना गलत है। क्योंकि तुम आला हजरत को पढ़ो, हम आला हजरत को मानने वाले हैं, इन बाबे को नहीं मानने वाले हम लोग। अरे तो हमारी बात सुनिएगा आप जनाब। ऐसा है जी, तुमने अपनी पहचान नहीं बताई, अपनी पहचान को छुपाया, और तुम अब कह रहे हो कि मैं बरेलवी हूँ। बरेलवी हूँ मैं, खुदा की कसम खा लो।
खुदा की कसम खा लूं, हाँ, बरेलवी की पहचान क्या है? खुदा की कसम खाओ कि तुम बरेलवी हो। मतलब खुदा की कसम खा के बरेलवी पहचान बता देगा अपनी? अरे भाई, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह की झूठी कसम नहीं खाता। खुदा की कसम खा लो कि तुम अभी भी सच्चे दिल से बरेलवी हो। मैं बरेलवी हूँ, इसमें कोई कसम खाओ ना, नहीं। आप कसम खाइए, आप मानो या ना कसम। अरे मैं मान लूंगा ना कि तुम चलो बरेलवी हो और बरेलवी की इस्लाह चाहते हो। ऐसी बात मैंने जब कह दिया कि ऐसे बाबे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप गुस्सा किस बात पे हो ये बताइए? मैं तो कहाँ गुस्सा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ खुदा की कसम खा लो कि तुम बरेलवी हो। मेरी बात आप सुनी नहीं रहे, आप अपना ही बता रहे हो। मेरी बात तो आपने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा खुदा की कसम खाइए, अपनी जमात का नाम बताइए, तो ना तो तुमने अभी तक अपनी जमात का नाम बताया, लावारिस हो अभी तक, और ना ही तुम अभी तक जो है ये कसम खाई है तुमने कि तुम सुन्नी हनफी बरेलवी हो। हकीकत में नहीं, जबान कुछ नहीं होती है। कसम खाइए ना खुदा की। होती है अगर आप ईमान वाले हो तो अल्लाह की सच्ची कसम खा लोगे। अगर आप हकीकत में बरेलवी हो, हर चीज कसम पे होती है क्या? अरे यार पहचान हो जाएगी ना। झूठा आदमी खुदा की कसम नहीं खाएगा। जिसके दिल में जर्रा बराबर राय के दाने बराबर भी ईमान होगा ना जी, तो अल्लाह ताला की झूठी कसम नहीं खाएगा कभी भी। तो हर चीज कसम पे होती है वैसे जबान। मैंने कहा ना कसम खा लीजिए, बात खत्म होगी। क्यों सरदर्दी कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए। मेरी बात बताएंगे क्या जब मेरी बात सुनिए? चलिए तो कॉल कट करके फरार हो जाइए, ठीक है। तुम्हारे जैसे रोज डेली बहुत शैतान आते हैं और चले जाते हैं।